मेरे प्यारे students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing questions on triangles that have appeared in IPMAT examination in previous years. Start करते हैं session, and if you've not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon, and you can also join WhatsApp channel. Link description में checkout कर सकते हो और मुझे message कर सकते हो on Telegram at ADITYAKT. So first question is from IPMAT 2025. Consider a triangle with side lengths 4 meters, 6 meters, and 9 meters. A dog runs around the triangle in such a way that the shortest distance of the dog from the triangle is exactly 1 meters. The total distance covered in meters by the dog in one round क्या होगा? Pause the video and try to solve it. Okay, there is a triangle with side lengths 4 meters, 6 meters, and 9 meters. So first of all, let us make the triangle. Lengths are 4 meters, 6 meters, and 9 meters. And then a dog is running around this triangle in such a way that the shortest distance of the dog from the triangle is exactly 1 meters. Shortest distance of the dog from the triangle. इसका मतलब क्या हुआ? This implies that, for example, this is the point. So distance of this point, the minimum distance, the shortest distance of this point from the triangle should be exactly 1 meter. If this point is lying on the path of the dog, अगर डॉग के पाथ में ये पॉइंट लाई कर रहा है तो इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुड बी एग्जैक्टली 1 मीटर. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा? व्हेन वी आर ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन टू द साइड ऑफ द ट्राइंगल. सो दिस डिस्टेंस हियर, दिस शुड बी इक्वल टू 1. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ? ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी 1 होनी चाहिए. ओके, तो क्या पाथ होगा डॉग का? So from this point to this point, if you drop perpendicular to this line and connect this path, this should be the path along this side. ठीक है, अगर ये हमारा side, let's say this was A, B and C, so along AB, this should be the path at a distance of 1 meter. Similarly, along BC, the path should be at a distance of 1 meter again. So this should be the path at a distance of 1 meter. Along AC path क्या होगा? Again same logic. Parallel to AC at a distance of 1 meter. तो बेसिकली हर एक केस में क्या हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है जिसका विड्थ इज 1 मीटर्स एंड लेंथ इज इक्वल टू द साइड ऑफ द ट्राइंगल, जिसके करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अब बीच में पाथ का क्या कंडीशन होगा, यानी कि हाउ विल वी कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स. ठीक है, अगर इसको ऐसे कनेक्ट किया हमने, इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दिया और फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे कट करेगा, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? एट दिस पॉइंट द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 1 मीटर्स, इजंट इट सो? यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा 1 मीटर्स नहीं होगा, बट हमें एट दिस पॉइंट ऑल्सो, एट एवरी पॉइंट we need shortest distance to be equal to exactly 1 meter. So this should not be the path. So better approach will be to draw a circle path connecting these 2 points. And obviously, since this distance is 1 meters, this is also 1 meter. So radius of that circle will be equal to 1 meter. Similarly, we'll be drawing a part of the circle here and a part here. अब total length calculate कर लेते हैं. So length along side AB, this will be equal to 4 meters. Rectangle form हो रहा है. Similarly, along AC will be 6. Along BC will be equal to 9. So 4 plus 6 plus 9, इतना तो मिल ही गया. प्लस दिस सर्कुलर लेंथ, ये कितना होगा टोटल? अब इसका एंगल पता होना चाहिए. सो लेट अस से दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा 1, दिस इज इक्वल टू थीटा 2 एंड दिस इज इक्वल टू थीटा 3. तो टोटल हमारा क्या है? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, यानी टोटल 360 डिग्रीज. तो दिस इज वन कंप्लीट सर्कल विद रेडियस 1 मीटर्स. तो टोटल एडिशनल लेंथ विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, और आर इज इक्वल टू 1, तो 2 पाई इंटू 1, दिस विल बी आवर टोटल लेंथ विच इज इक्वल टू 19 प्लस 2 पाई. तो आंसर विल बी 19 प्लस 2 पाई meters will be total distance covered. Is this logic clear? ठीक है, next question. In a right angled triangle ABC, the hypotenuse AC is of the length 13 centimeter. A line drawn connecting the midpoints D and D of the sides AB and AC is found to be 6 centimeter in length. तो length of BC क्या होगा? So ABC is a right angled triangle and right angled hypotenuse is AC, तो right angled at B होगा. Right angled at B.
A line is drawn connecting midpoints D and E of sides AB and AC. So midpoint of AB is equal to D and midpoint of AC is equal to E, and we are connecting D and E. And then it is given that line connecting D and E is equal to 6 centimeter in length. So this is equal to 6 and hypotenuse is equal to 13. So AC is equal to 13 centimeter. DE is equal to 6 centimeter. So as per the midpoint theorem, if we are connecting two corresponding midpoints of two sides, so in that case the line drawn is parallel to the third side. So DE will be parallel to BC. DE will be parallel to BC, and additionally the line connecting midpoints is also equal to 1 by 2 times the length of third side. So DE will be equal to BC by 2. And since DE is equal to 6, so BC will be double of that, and hence BC will be equal to 12 centimeter. Answer will be option A. Now since this is a right angle triangle and BC is equal to 12, AC hypotenuse is equal to 13, so clearly this is a Pythagorean triplet जहाँ पे की साइड लेंथ आर 5, 12 and 13. ठीक है, आंसर हमारा मिल गया है. बट जस्ट इनकेस हमें क्वेश्चन में लेंथ ऑफ एडी पूछा होता, लेंथ ऑफ डी भी पूछा होता, तो 5, 12, 13 है. 12 इज अवर BC, 13 इज AC, तो 5 विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ AB, and hence AD will be equal to AD part, this will be 2.5 centimeter, and similarly DB will also be equal to 2.5 centimeter. Okay. Next question. The length of the sides of a triangle are x, 21 and 40, where x is the shortest side. A possible value of x क्या हो सकता है? X is the shortest side, so x should be less than 21, obviously, because 21 is the second shortest side and 21 is less than 40. But x shortest side है, ऐसा भी possible हो सकता है कि x is equal to 21. This is also possible, because even then x will be the shortest side. अगर क्वेश्चन में एडिशनल कंडीशन में से होता है कि ऑल साइड लेंथ शुड बी डिस्टिंक्ट, तब बात अलग थी, तब x शुड बी लेस देन 21 फॉर श्योर. बट यहाँ पे x should be less than equal to 21. That is our first condition. Additionally, these are sides of the triangle. So in any triangle, if there are three sides A, B and C, and let us say A is less than equal to B and B is less than equal to C, यानी कि A is shortest side and C is longest side. So in that case, sum of lengths of any two sides should always be greater than the third side. ठीक है, और अगर ये लॉन्गेस्ट साइड के लिए हो रहा है तो बाकी साइड्स के लिए तो होगा ही होगा. तो इफ वी हैव अरेंज्ड साइड्स in increasing order, A less than equal to B less than equal to 6, C, so sum of lengths of smallest two sides should be greater than the third side, should be greater than the longest side. Otherwise ये हमारा तीनों पेयर्स के लिए मैटर करेगा, यानी कि A plus B should be greater than C, B plus C should be greater than A, C plus A should be greater than B. But obviously if this is true for the longest side, तो डेफिनेटली बाकी दोनों केसेस में ट्रू होगा ही होगा. ओके, तो दिस कंडीशन वी हैव टू इंश्योर अगर हमें ऑर्डर पता है. अगर नहीं पता है तो ऑल दीज थ्री कंडीशन शुड बी काउंटेड फॉर. ठीक है, तो पहला कंडीशन हमें मिला, फर्स्ट कंडीशन, दैट सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स, द अदर टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो पाएगा. सेकेंड कंडीशन इज अबाउट डिफरेंस ऑफ टू साइड्स. ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स. तो सेकेंड कंडीशन हमारा होगा C minus B, this should be less than A. ठीक है, C minus B, this should be less than A. यानी डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स शुड ऑलवेज बी लेस देन द थर्ड साइड, अदरवाइज अगेन ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा. अगर इक्वल होगा तो लाइन फॉर्म हो जाएंगी हमारी, और अगर ग्रेटर देन होगा तो इन दैट केस ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो पाएगा. तो दीज टू कंडीशन शुड ऑलवेज बी टेकन केयर ऑफ. तो हमारे इस केस में साइड लेंथ आर x इज लेस देन 21, 21 इज लेस देन 40. सो इन दैट केस x प्लस 21, दिस शुड बी ग्रेटर देन 40 एंड हेंस x शुड बी ग्रेटर देन 19. तो दो कंडीशन मिल गया, x शुड बी ग्रेटर देन 19 एंड x शुड बी लेस देन इक्वल टू 21. तो डेफिनेटली x कैन बी either 20 or 21 and hence the only possible option is option B, 20. Okay. और यही सेम कंडीशन हमें मिलता कि अगर हम करते C माइनस बी लेस देन ए, तो वहाँ से भी सेम ही कंडीशन मिलने वाला था. अल्टीमेटली ये दोनों कंडीशन एक ही बात तो कह रही है.
भाई c minus b, if that is less than a, तो c should be less than a plus b. So our only focus should be on this particular condition, that a plus b should be greater than c. Okay, क्या ही क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. So next is number of triangles with integer sides with perimeter equal to 15. Again सेम एक कंडीशन हमें फॉलो करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, और उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो टेक अ पॉज, टेक योर टाइम और ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, ऑर्डर में रखोगे तो ही चीज़ें आसान होगी, तभी काउंट करना हमेशा आसान होगा. जब भी किसी क्वेश्चन में काउंटिंग करना हो, हमेशा चीज़ों को ऑर्डर में रखो. तो ऑर्डर कैसे होगा हमारा? लेट अस अज्यूम कि इंटीजर साइड लेंथ्स आर इक्वल टू ए बी एंड सी, एंड ए इज लेस देन इक्वल टू बी and b is less than equal to c. So a is the shortest side and c is the longest side, and total sum perimeter is equal to 15. So a plus b plus c is equal to 15. So what should be the side lengths? Condition क्या है हमारे पास? That a plus b, this should always be greater than c. So these are the two conditions. a plus b should be greater than c. तो जिस केस में a plus b greater than c नहीं होगा, उस केस को हमें कंसिडर नहीं करना है. अब स्टार्ट करते हैं काउंट करना. तो सिंस a इज द स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड को सबसे पहले 1 लेते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इंटीजर लेंथ्स. तो लेट अस से a इज इक्वल टू 1. इफ a इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 2c क्यों लिख दिया है? a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन c. तो इफ a इज इक्वल टू 1, a प्लस बी प्लस c हमारा 15 होना है, तो b प्लस c शुड बी इक्वल टू 14. एंड इफ b प्लस c शुड बी इक्वल टू 14, तो वी कैन टेक बोथ एज इक्वल. दोनों को इक्वल ले लो. b and c both equal to 7, so that is a possible case. 1 plus 7 is greater than 7, that is fine. ठीक है, अगर हमने b को 7 के बजाय और स्मॉल किया, b को 6 किया, c को 8 किया, तो पॉसिबिलिटी बनेगा 1, 6 and 8. बट इन दैट केस दिस केस विल नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज 1 plus 6 is less than 8, और हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा. सो दिस केस विल नॉट बी कंसिडर्ड. ओके, 1 वाला केस. अब इसके बाद में फर्दर डिक्रीज करोगे b को, तो और भी ज्यादा c लार्जर होगा. तो यानी कि दिस इज द ओनली पॉसिबल केस जहां पे कि a इज इक्वल टू 1 है, साइड लेंथ स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू 1. तो इंक्रीज द स्मॉलेस्ट साइड. नाउ a इज इक्वल टू 2 लो. a इज इक्वल टू 2, तो b प्लस c इज इक्वल टू 13 आ गया. अगेन कोशिश करो, सबसे पहले इक्वल से स्टार्ट करो. b प्लस सी 13 बाई 2 6.5, तो 6 एंड 7 ले सकते हैं, इक्वल ले नहीं सकते क्योंकि इंटीजर साइड्स है. 6 एंड 7 लिया, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 7. 2 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 7, तो कंडीशन फॉलो हो रहा है हमारा. फर्दर b को डिक्रीज करो, b हो जाएगा 5, c हो जाएगा 8. 2 प्लस 5 इज नॉट ग्रेटर देन 8, तो ये वाला केस भी हमारा काम नहीं आएगा. यानी कि 2 वाले केसेस भी एग्जॉस्ट हो गए. तो a इज इक्वल टू के लिए भी ओनली वन ट्रायंगल इज पॉसिबल. इंक्रीज a फर्दर. a इज इक्वल टू 3 लिया, b प्लस c इक्वल टू 12 आ गया, इक्वल ले लो. 3, 6 एंड 6, दैट इज पॉसिबल ऑब्वियसली. डिक्रीज बाई 1, डिक्रीज b बाई 1. a को 3 ही रखो. सो 3, 5 एंड 7. 3 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 7, दैट इज ऑल्सो फाइन. ठीक है, अब अगर फर्दर डिक्रीज करोगे 3, 4 एंड 8, अगेन सेम लॉजिक है. 3, 4, 8, 3 प्लस 4 इज नॉट ग्रेटर देन 8, सो ये वाला केस भी काम नहीं आएगा. नेक्स्ट फिर से इंक्रीज करो, 3 से गए 4 पे. तो a इज इक्वल टू 4, b प्लस c इज इक्वल टू 11, तो 5 एंड 6 ले सकते हैं. 4, 5 एंड 6. ओके, डिक्रीज b बाई 1, तो 4, 4 एंड 7, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. नाउ इफ यू फर्दर डिक्रीज b बाई 1, तो 4, 3 एंड 8 बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली. सो फर्दर इंक्रीज. a इज इक्वल टू 5 लिया. इफ a इज इक्वल टू 5, b प्लस c इज इक्वल टू 10, बोथ शुड बी इक्वल, तो बोथ शुड बी इक्वल टू 5. अब अगर डिक्रीज करते हो तुम b को, तो b तुम्हारा स्मॉलेस्ट साइड मतलब 5 से भी छोटा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं. तो सारे के सारे केस हमने काउंट कर लिए हैं, और क्योंकि एक ऑर्डर में काउंट किया है, तो हमारा कहीं पे भी कोई भी केस मिस नहीं हुआ होगा. तो हमेशा कोशिश करना है एक ऑर्डर में काउंट करने का. नंबर ऑफ केसेस कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. So total 7 such triangles are possible. So our answer will be equal to 7 in this case. Is this clear? ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो अपने एंड पे नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर पेरीमीटर इक्वल टू 19. सो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर पेरीमीटर इक्वल टू 19? कमेंट में आंसर मेंशन करना. ठीक है, टेक योर टाइम. शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टेक योर टाइम. बट कंडीशन समझ गए हो, ऑर्डर समझ गए हो, तो एक ऑर्डर फॉलो करना है, कंडीशन फॉलो करना है, और प्रोसेस को भी समझ लेना है अच्छे से. उसके बाद में अपने एंड पे ट्राई करना है. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं. द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग
both coordinates as integers that lie in the interior of the triangle with vertices 0, 0, 0, 31 and 31, 0. तो number of points कितने होंगे जिनके कि both coordinates are integers and that lie in the interior of the triangle, inside the triangle. And coordinates of the vertices are 0, 0 यानी कि origin and then 0, 31 that will be lying on y-axis and 31, 0 that will be lying on the x-axis. This is basically a isosceles right angle triangle. 0, 0, 31, 0 and 0, 31. So can you write the equation of the hypotenuse? Because two sides are basically x-axis and y-axis. तो उनमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, 0, 0 के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा 1, 0, 2, 0, 3, 0. नेक्स्ट पॉइंट विल बी 1, 0 and then 2, 0 and so on till 30, 0 and last 31, 0. Similarly, on y-axis 0, 0, then 0, 1 and so on till 31, 0. But before that 0, 31. Before that 0, 30. Okay. अब ये जो लाइन हमारा लाई कर हाइपोटेन्यूज, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज पे वी हैव वन पॉइंट दैट इज 0, 31, अदर पॉइंट इज 31, 0. सो x प्लस वाई इक्वल टू 31 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, शुड बी इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 यानी कि सम ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 31. ओके, तो हमें काउंट करने हैं पॉइंट्स दैट आर इनसाइड दिस ट्रायंगल. तो एक तरीका ये हो सकता है कि सारे के सारे पॉइंट्स को इंक्लूडिंग द बाउंड्रीज काउंट कर लें और फिर लास्ट में बाउंड्री वाले पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें. दूसरा हो सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इनसाइड वाले पॉइंट्स को काउंट करें. ठीक है, पहले सारे के सारे पॉइंट्स को काउंट करते हैं इंक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स और फिर बाउंड्री पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकाल लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. किसी भी साइड से स्टार्ट करो तो टॉप से स्टार्ट करते हैं. टॉप पे वी हैव ओनली वन पॉइंट 0, 31. नेक्स्ट आता है 0, 30 and correspondingly next point will be 1, 30. But 1, 30 will lie on the hypotenuse itself because 1, 30 में सम आ रहा है x और y coordinates का 31. So that will lie on the hypotenuse. Next point will be 0, 29 and then 1, 29 आएगा. सम आ रहा है यहाँ पे 30. Then आएगा 2, 29 which will lie on the hypotenuse itself. So order समझ पा लोगे? तो at y is equal to 31 we have only one point. At y is equal to 30 we have 2 points. At y is equal to 29 we have 3 points and so on increase करेगा. So next आएंगे 4 and 5 and so on. और लास्ट केस में on x axis we have total points from 0, 0 to 31, 0. 0 to 31 total points will be 32. 0, 1, 2, 3 ऐसे हमारा x coordinate 0 से लेकर 31 तक जाएगा. Total 32 points will be there. तो from 1 to 32 sum कर लो. Sum of first and consecutive natural numbers that is equal to n into n plus 1 by 2. So 32 into 33 by 2. This is 16 into 33. 16 into 3 is 48. So 480 plus 48 that is equal to 528. So total points are 528 including the boundary points. Okay, including the boundary points. So points inside will be equal to 528 minus. अब सब्ट्रैक्ट करने के दो तरीके हैं. या तो सिर्फ और सिर्फ तुम पॉइंट्स काउंट करो और ध्यान ये रखना है कि हमेशा ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पॉइंट्स विच आर कॉमन फॉर टू लाइंस, इनका डबल काउंटिंग होगा. तो या तो इनको काउंट करते समय पहले ही ध्यान रखो शांति से कि डबल काउंटिंग ना हो. अदरवाइज डबल काउंटिंग होगा तो बाद में एक बार में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इनको. ठीक है, तो अगर हम शांति से काउंट करते हैं तो सबसे पहले काउंट किया हमने पॉइंट्स हाइपोटेन्यूज के. तो ऑन हाइपोटेन्यूज टोटल पॉइंट्स आर फ्रॉम 0, 31 to 31, 0. यानी कि 0 अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस करो, किसी भी एक कोऑर्डिनेट फोकस कर लो एक्स कोऑर्डिनेट पे 0, 31. नेक्स्ट आएगा 1, 30, 2, 29, 3, 28 एंड सो ऑन. तो 0, 1, 2, 3 टिल 31. टोटल पॉइंट्स आर 32. तो टोटल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन आर इक्वल टू 32. सिमिलरली ऑन एक्स एक्सिस कितने पॉइंट्स लाइक करें 0, 0 से 31, 0. टोटल पॉइंट्स आर 32 ऑन दिस लाइन इटसेल्फ. सिमिलरली लाइन ऑन द वाई एक्सिस कितने पॉइंट्स लाएंगे 0, 0 से लेकर 0, 31 तक. अगेन 32 पॉइंट्स इन टोटल है कि नहीं. टोटल पॉइंट्स हमारे कितने आ गए 32 प्लस 32 प्लस 32. एंड सिंस द थ्री वर्टिसेस आर डबल काउंटेड तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो. एक बार ही सब्ट्रैक्ट करना है बिकॉज हमने डबल काउंटिंग किया. एक बार तो काउंट करना ही करना है तो एक बार सब्ट्रैक्ट करते समय काउंट करना है क्योंकि हम पूरा एलिमिनेट कर रहे हैं. ठीक है, सो टोटल दिस विल बी इक्वल टू 528 minus 93. So that will be equal to 435. Our answer will be 435 option A. ठीक है,
और या फिर ये कर सकते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट्स इनसाइड हैं उनको ही काउंट करते। अगर हम उनको ही काउंट करते तो पहला ऐसा पॉइंट हमें मिलता ऑन दिस 1,29, दिस इज द फर्स्ट सच पॉइंट। नेक्स्ट मिलते हैं हमें 0,28 के बाद 1,28, 2,28, दीज टू पॉइंट्स। सो 1 मिले फिर 2 मिले। ठीक है, लास्ट पॉइंट कहाँ पे मिलते हैं? 0,1 के बाद 1,1, then 2,1 and so on till 30,1 will be line on boundary, तो उसको तो काउंट करना नहीं है हमें। लास्ट विल बी 29,1, तो 29 पॉइंट्स इन टोटल एट लास्ट। ठीक है, तो 1 में पॉइंट मिला है हमें यहाँ पे, 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेंगे, फिर 3 मिलेंगे, तो लास्ट में मिलेंगे 29, और इनको सम करना है फ्रॉम 1 to 29। सो आंसर विल बी 29 into 30 by 2, so that will be 29 into 15, that is equal to 290 plus 145, that is 435। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a triangle ABC, let D be the midpoint of BC and AM be the altitude on BC. If the lengths of AB, BC, CA are in the ratio of 2:4:3, then the ratio of lengths of BMAD would be equal to which of the following? ट्राइंगल एबीसी में D is the midpoint of BC and AM be the altitude on BC। ठीक है, सो हम AM और D दोनों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं BC पे, तो BC को बेस बना लेते हैं ताकि फिगर बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। सो दिस इज BC एंड दिस विल बी पॉइंट A, लेट अस से A, B and C। D is midpoint on BC। थोड़ा सा परपेंडिकुलर को अलग रखने के लिए D को थोड़ा साइड में कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट D and then we have a perpendicular AM on BC। Then given is that lengths of AB, BC and CA are in the ratio 2:4:3। If length of AB is equal to 2K, BC will be equal to 4K and AC will be equal to 3K। We have to find out ratio of lengths of BM and AD क्या होगा, BM और AD का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अल्टीमेटली क्वेश्चन में भी ऑप्शंस में रेशियो गिवन है और आंसर में भी रेशियो ही पूछा है, तो हम 2K, 3K, 4K एज्यूम कर सकते थे, इसके बाद में BM और AD की वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट क्योंकि हमें अल्टीमेटली आंसर में भी रेशियो ही चाहिए, सो इन एनी सच केस वेयर लेंस आर गिवन इन रेशियो एंड आंसर इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रेशियो, सो हम अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए के एक अननेसेसरी अननोन नहीं मानेंगे और एज्यूम करेंगे कि लेंस आर 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, 2, 4 एंड 3। तो के की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एंड में भी आंसर रेशियो में ही आना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3 और 4 हमने मान लिया अपना साइड लेंस। ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सिंस डी इज द मिड पॉइंट, तो बी डी विल बी 2 सेंटीमीटर, बी डी विल बी 2 सेंटीमीटर। And then we have to find out ratio of BM and AD. Let us assume BM is equal to X and AD, let us say that is equal to M। क्योंकि मीडियन कर लेते हैं, मान लेते हैं this is equal to M। Okay, now we have to find out ratio of X is to M। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सिंस वी हैव अ परपेंडिकुलर AM इन दिस केस, AM तो हमें गिवन है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है यहाँ पे? AM का लेंथ मतलब गिवन नहीं है, बट AM का कंस्ट्रक्शन है, उससे हम समहाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें गिवन क्या है? गिवन है AB, AC एंड BC, दैट इज गिवन। ओके, सो सिंस BC इज गिवन, तो BD इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बना सकते हैं इफ वी कंसिडर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABM and triangle AMC, because in both these cases AM is the perpendicular। तो somehow पाइथागोरस थ्योरम दोनों केसेस में अप्लाई करके हम AM के लिए इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कि AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AM स्क्वायर, एंड सिमिलरली AC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू AM स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, this should be equal to AM square and that is equal to AC square which is 3 square minus CM square। अब CM क्या होगा? CD is equal to 2, this is equal to 2 और MD will be equal to 2 minus X, तो CM will be equal to 4 minus X, 3 square minus 4 minus X का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी 4 minus X square that is equal to 9 minus 16 plus X square minus 8X।
Okay, so this becomes 4 minus x square, that is equal to minus 7 minus x square plus 8x. So x square gets cancelled out, 8x becomes equal to 11. So x is equal to 11 by 8. तो हमें बी एम का वैल्यू मिल गया, दैट इज इक्वल टू 11 by 8. Okay, now second thing that we need to find out is length of AD. Again, we can focus on triangle ADM because that is also a right angle triangle. और x की वैल्यू मिल गया है तो हमें 2 minus x मिल गया है. So AM square plus MD square, this will be equal to M square. और AM square की वैल्यू भी निकाल ही लेंगे अब, ठीक है, क्योंकि हमें AM square क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 square plus x square. तो बेसिकली M square will be equal to 2 square plus x square plus 2 minus x whole square. So 2 square is 4, x square will be 121 by 64, and 2 minus x will be equal to 2 minus x will be 2 minus 11 by 8, so that will be 5 by 8 whole square, so 25 by 64. Okay, so this becomes equal to 4 plus 121 by 64 plus 25 by 64. टोटल ये आ रहा है, एलसीएम लिया हमने 64, तो 256 प्लस 146, तो 250 प्लस 152, सो 402 by 64. ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्यों आ रहा है इतना? ठीक है, यानी कि दिस विल बी 201 by 32. कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. एक सेकंड, हमें चाहिए था एम स्क्वायर. ठीक है, एम स्क्वायर होगा ए एम, ओहो गड़बड़ किया ना यहाँ पे. ई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी माइनस साइन यहाँ पे आएगा. सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 माइनस 121 by 64 और प्लस दिस वॉज 25 by 64, यानी कि 4 minus 96 by 64 which is equal to 5 by 2, because 96 by 64 that is equal to 3 by 2. तो m square is equal to 5 by 2 आ गया. तो हमें रेशियो चाहिए x is to m का, x is 11 by 8 and m is equal to root of 5 by 2. m यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू root of 5 by 2 which can also be written as root of 10 by 2. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया रूट 2 से डिनोमिनेटर में, सो दिस बिकम्स रूट 10 by 2 मल्टीप्लाई बाई 4 तो सिंप्लीफाई द रेशियो, तो आंसर आ जाता है 11:4 रूट 10. और ऑर्डर का ध्यान रखना, बी एम इज टू ए डी है, एक्स इज टू एम, ऑप्शन ए आंसर होगा. 11:4 रूट 10 दैट विल बी द आंसर. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ये तो अप्रोच हो गया अपना एक सॉल्व करने का. ठीक है, और क्या देख सकते थे कभी भी ऐसे क्वेश्चन, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वी कुड ऑल्सो हैव अप्लाइड अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पे. ठीक है, बिकॉज मीडियन का लेंथ को कनेक्ट करके हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते थे इन दिस केस. A, B, C, AD is the median, and then AM is altitude, and then 2, 4 and 3. So as per the Apollonius theorem, as per the AD is the median, so 2 times of AD square plus BD square. अब यहाँ पे BD square और CD square में से कुछ भी एक सकते हो. 2 times of AD square plus BD square, that is equal to AB square plus AC square. यानी कि 2 times of median whole square, लेंथ ऑफ मीडियन होल स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ मीडियन जिस साइड पे है, ठीक है, उसका जो हाफ लेंथ होगा स्क्वायर्ड, यानी कि BD स्क्वायर. सो 2 times AD square plus BD square, that is equal to squares of sides of sums of squares of sides of remaining two sides, sums of squares of remaining two sides, यानी AB square plus AC square. 2 times AD square plus BD square, that is equal to AB square plus AC square. ठीक है, अप्लाई कर दो. तो 2 times, अगर हमने AD को M एज्यूम किया है, सो 2 times of M square plus BD is equal to, तो 2 square, that is equal to 2 square plus 3 square. So 2M square plus 8 is equal to 4 plus 9. So 2M square is equal to 5 and hence M square is equal to 5 by 2. यहाँ से हमें अल्टीमेटली मीडियन का लेंथ तो मिल जाएगा, बट अगेन BM भी तो फाइंड आउट करना है. सो इफ BM is equal to x, MD will be 2 minus x.
एंड देन अल्टीमेटली हमें लेंथ एम डी का फाइंड करके वहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस से रिपीट करोगे कि अल्टीमेटली ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर विच इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर इज इक्वल 5/2। बट ए एम स्क्वायर भी तो पता नहीं है, तो ए एम स्क्वायर कन्वर्ट करो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, दिस विल बी 4 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5/2, और फिर यहाँ से अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और अपना आंसर आ जाएगा। तो दिस इज अनदर अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि हमें क्योंकि ए एम परपेंडिकुलर गिवन है, तो कभी भी क्वेश्चन में अगर हमें जस्ट इनकेस बाकी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी होती तो एक तरीका और होता है। अगर हमें सिर्फ ए एम के लिए कंसर्न होता और मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो चीज़ें आसान हो गई, बट जस्ट इन केस इफ दिस वाज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वाज एनी अदर ट्रायंगल, ठीक है, जहाँ पे कि हमें नहीं नहीं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, सारी साइड्स लेंस पता है, बट एनी केस समझ तो लेते हैं उस बात को, क्योंकि फिर कनेक्ट कैसे करेंगे। पर ये समझो कि हमें 3 साइड लेंस गिवन है, ठीक है, 2, 3 एंड 4 आर द साइड लेंस एंड दिस इज आवर परपेंडिकुलर। So we can find out area of this triangle by 2 methods. है कि नहीं? One method will be area of this triangle will be equal to 1/2 into AM, which is into BC. So base into height. Height is AM, base is BC. So 1/2 into AM into BC. Second method will be through Heron's formula. That will be square root of S into S minus A into S minus B into S minus C, where S is the semi-perimeter. S will be equal to 2 plus 3 plus 4 divided by 2 and hence equal to 9/2. सो वहाँ से हमें एरिया मिल जाएगा और अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट लेंथ ए एम, या फिर अगर थर्ड साइड फाइंड आउट करना होता है ए एम गिवन हो तो भी फाइंड आउट कर सकते थे। दैट इज अनदर अप्रोच। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, बाकी हम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो अपोलोस में थ्योरम को यूज़ करके सॉल्व करेंगे, या फिर जो पहला मेथड हमने देखा वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्या ये क्लियर? सो इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आई बिलीव जो भी हमने बातें डिस्कस की सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।